وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله ثم الحمد لله. علی دوال قادمان سے ظہر مسجد اعظم میں درس تفسیر و درس فقہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس درس تفسیر میں ہم نے 121 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 122 یعنی 122 سے لے کر 124 تک 122، 123 اور 124 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو علماء کرام نے ذکر کی ہے وہ آپ سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، اور میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام عالموں پر، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے میں کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، اور نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی شفاعت کو فائدہ دینے والی ہے، اور نہ ان کی کبھی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند کلمات کے ذریعے، تو ابراہیم نے ان کو مکمل کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تم کو تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میری ذریت میں سے بھی بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ظالمین میرے وعدے کو نہیں پا سکیں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی فضیلت دینے کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، وہ اس سے پہلے دو آیات مبارکہ اسی طریقے سے گزری ہیں۔ ایک ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 40، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی نعمتوں پر نازل ہونے والے نعمتوں کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں 47 اور 48 آیات مبارکہ میں جو ہے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں اللہ نے نازل کی، جو نعمتوں ہیں اسے اللہ نے ان کو بہرہ مند کیا، جو نعمتوں سے ان کو سرفراز کیا، اس کا ذکر کیا۔ اب نعمتوں کا ذکر کرنا نہیں ہے، نعمتیں بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل، ہم نے اسے تفصیل سے ذکر کیا، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے بنی اسرائیل کہتے تھے، اور یہود بھی جو ہے بنی اسرائیل کی ایک شق ہوتی ہے، ایک ٹکڑی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتوں کو نازل کیا، جو ہے پہلی جو ہے فرعون سے نجات دی، دوسرا من اور سلوہ نازل کیا، اور اس کے علاوہ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل پر نعمتوں کو نازل کیا، نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ان کو چاہیے یہ ہے کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں موجودہ بنی اسرائیل میں تو نہیں کی تھی، بلکہ ان کے آبا و اجداد پر کی تھی،
تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد پر اللہ نے بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، تو تمہارا کام اور تمہارا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ اب آ چکے ہیں، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور جو احکامات دیے گئے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے۔ اب تفصیل میں نے ذکر کی، اس سے پہلے بھی آ چکا کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، بس دوبارہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نعمت کی قدر کرو اور جو نعمتیں اللہ نے نازل کی اس نعمت کو سمجھو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اب جو نبی کے بارے میں بشارتیں دی گئی تھی وہ نبی آ چکے ہیں، اب تو وہ شریعت ختم ہو چکی ہے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو تمام جو ہے عالمین ہے ان پہ تم کو فضیلت دی تھی، یعنی اس وقت کے جتنے بھی لوگوں تھے وہ تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم کو جو ہے کوئی بچا لیں گے، یہ بچا لیں گے، قیامت کا دن جو ہوگا یہ بچا لیں گے وہ بچا لیں گے، تو اللہ نے اس آیات مبارکہ میں اس کی نفی کی ہے کہ یہ ایسی آیت بالکل جو ہے اس سے پہلے بھی گزر چکی، میں تفصیل اس کی زیادہ ذکر نہیں کروں گا کہ انسان جو ہوتا ہے بچنے کے بہت سارے، اگر کوئی انسان جو ہے اگر کہیں پہ مشکل میں آ جاتا ہے یا قید میں پھنس جاتا ہے، سمجھو اگر کوئی مجرم ہے اگر وہ قید میں پھنس جائے تو کیا ہوتا ہے، تاوان دیتا ہے یا پھر جو جرمانے دیتا ہے یا کسی طریقے سے سفارشیں لگاتا ہے کہ مجھے جو ہے چھوڑ دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی اس گھڑی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب قیامت کا دن ہوگا کوئی نفس کو کسی دوسرے کے بدلے میں نہیں چھوڑا جائے گا کہ مجھے پکڑ لیں اور اس کو چھوڑ دیں، نہیں، کہ جو پکڑا گیا ہے اسی کو سزا ہوگی، یعنی جو گناہ کیا ہے اسی کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ یوم لا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس، کہ کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے میں بدلہ اور سزا نہیں دی جائے گی۔ میرا باپ ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کی سزا مجھ کو دی جائے، نہیں، باپ اگر گناہ گار ہے تو باپ کو دیا جائے گا، اگر بیٹا گناہ گار ہے تو بیٹے کو سزا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا گناہ کرا اس کی وجہ سے باپ کو گناہ سزا دی جائے، ایسا نہیں، البتہ سوالات ہوں گے، اور اگر اس سوالات اور اس کی مسئولیت اور اس کی رسپانسبلٹی اور اس کی ذمہ داری کو اس نے پورا ادا نہیں کیا تو یہ اس کا گناہ ہوگا، تو اس وجہ سے اس کو سزا دی جائے۔ مثلا یہ کہ اگر کسی نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کو نماز روزہ نہیں سکھایا، اس کو دیندار نہیں بنایا، یہ غلطی اس باپ کی ہے تو اس غلطی کی سزا اس کو ملے گی۔ ہاں، یہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے اس کو سزا مل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا آپ گناہ کر رہا ہے اس کی گناہ کی سزا اس کو نہیں، بلکہ تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ ہو گیا تو اس کو سزا دی جائے۔ ایسے ہی آپ کو جو ہے ہم کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے بے شمار مرتبہ ہم کو تاکید کی ہے، تحدید کیا ہے، ڈرایا ہے، بتایا ہے، اور قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وہ بڑا ہولناک دن ہوگا، کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے میں جو ہے سزا نہیں دی جائے گی، ولا يقبل منها عدل، کوئی فدیہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے آج کل کی پولیس ہے اور آج کل کے لوگ ہیں کہ کچھ لے لیں اور بازو کے پیچھے گلی سے چھوڑ دیا جائے، ایسا قیامت میں نہیں ہوگا کہ بھائی آپ کچھ لے لیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں، کوئی تاوان لے لیا یا پھر کو جو ہے جرمانہ دے دیا یا بیٹ مل گئی، فلاں ہو گیا، یہ پیسے دینے اور جو عدالت سے، تو اللہ فرماتا ہے قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ فیصلے آخری فیصلے ہوں گے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے ہوں گے، وہاں پہ کسی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ فدیہ وہ دے گا جس کے پاس کوئی چیز ہوگی، قیامت کا ایسا دن ہوگا کہ کوئی بھی اس کے پاس نہ مال ہوگا، نہ زر ہوگا، نہ جائیداد ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یوم یفتدی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ معارج میں ارشاد فرماتا ہے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ چاہے گا کہ میں تمہیں اس عذاب سے بچنے کے لیے میں جو فدیہ اللہ مانگے وہ دے دوں، میں اولاد کو بھی دے دوں، میں ماں باپ کو بھی دے دوں، سب کو دے دوں، مولا یہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ قیامت کی ہولناک گھڑیوں سے بچا لے۔ اللہ نہیں، اب قیامت میں کوئی بھی، اور ایک جگہ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ مجھ کو موقع دے دے کہ میں پورا صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، جو کچھ بھی کر دوں، یہ عذاب سے بچ جاؤں۔ لیکن جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک آنکھ بند نہیں ہوئی ہے، اللہ نے موقع عطا کیا ہے، مال دیا ہے تو مال کو خرچ کریں،
अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे पास ये कीमती और अहमियत वाला है। इसको हम जो है नेकियों में गुजारे। लाइफ और जिंदगी मैंने आजकल जो है आप देखेंगे जो इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं वो हमेशा जो है डायग्राम और जो इस तरीके से स्लाइड्स का जमाना चल रहा है, इन शॉर्ट समझने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शॉर्ट में जो है पूरा तफसील से सुनने का जमाना नहीं है कि शॉर्ट में बताएं क्या है, बिल्कुल एक शॉर्ट पीपीटी बना दी जाती है कि ये शॉर्ट है बस ये है। मैं कहता हूँ कि मेरे जहन में भी आ गया लाइफ जो है एक आप लाइफ बना दें, उसको जो है दो उसमें में तकसीम कर लें, इंजॉयमेंट या प्रिपरेशन। जिंदगी दो तरीके से गुजारी जा सकती है, या तो इसको आप इंजॉय करते हुए गुजार दें, गुजर जाएगी, दोनों की भी जिंदगी गुजर जाएगी। जो इंजॉय कर रहा है पहली जिंदगी इंजॉय के जरिए, जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, बस माँ खाया पिया उड़ा दिया, बस कोई खुदा की और अल्लाह की तबारक व तआला की इबादत की ना, उसको याद करने की कोई। दूसरी जिंदगी गुजारने का तरीका दुनिया में तो रहे लेकिन आखिरत की तैयारी के साथ गुजारे। तो जो इस तरीके से जिंदगी गुजारता है वो राह नजात पर हो जाता है। हमारा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद-दुनिया मज़रअउ लिल आखिरह, कि दुनिया ये आखिरत की खेती बाड़ी है, कि यहाँ पे आप जो बोओगे वो क़यामत में वही पाओगे। यहाँ पर अगर हम और आप गुनाहों का बीज बो रहे हैं, तमन्ना और तवक्को और आरज़ू उम्मीद ये है कि हमको जन्नत का फल मिले, खुदा की अज़मत की कसम ये नहीं हो सकेगा। अगर यहाँ पर नेकियों का बीज बो रहे हैं, अल्लाह आखिरत में और क़यामत में हमको नेकियों का फल अता फरमाएगा, नेकियों के सवाब का फल अता फरमाएगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये दुनिया गुजर जाएगी, गुनाहगार की इसकी भी जिंदगी अय्याम गुजर जाएंगे, नेकोकार है उनकी भी जिंदगी के अय्याम खत्म हो जाएंगे, बस गुजर रही है, गुजर जाएगी। लेकिन जिसने जिंदगी की अहमियत को समझा और उसको ये पता चला कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन्नात की तख्लीक का मकसद अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की इबादत है, और राह हिदायत पे नामज़ल हो जाएगा। वो समझ के उसको हकीकत उसकी आशकारा हो जाएगी कि ये बंगले, ये फुला, ये मेरे उस्ताद मोहतरम से मैंने सुना, मेरे ज़हन में मेरी बात वो आ रही है कि ये जो है खिलवत जो है, हो सकता है आपसे इससे पहले भी जिक्र किया होगा, उसको असल उर्दू में लफ्ज़ है खलवत। तो बताते हैं कि वो खलवत नशीनी करने के लिए, तन्हाई गुजारने के लिए बादशाह सलामत वहाँ पे आते थे। तो हमारा मदरसा भी उसके पीछे ही था, वहाँ शादी बट्टे के पास, वहाँ से गुजरते थे तो उसके पीछे ही जो है हमारे उस्ताद मोहतरम बैठते थे। तो पूछे साहब ये हमसे ये क्या है, मतलब खिलवत है साहब। तो उन लोग भी तस्वीर करेंगे नहीं, वो खिलवत नहीं खलवत है। और बादशाह जो आते थे वो बादशाह यहाँ पे उनके रहने की जगह कुछ और होती थी, सिर्फ खलवत गुजारने के लिए, खलवत कहने सिर्फ तन्हाई के थोड़े से औकात गुजारने के लिए वहाँ पे होते थे। उसके बाद फरमाया कहा कि बादशाह जब यहाँ पे आते तो किसी में वहाँ से गुजरना तो दूर की बातें, कोई देख भी नहीं सकता था वहाँ पे कोई देख भी नहीं सकता। आज आलम क्या है कि वो खलवत जो है अब जो है पेशाब की जगह मिली है, वहाँ पे हर जगह जो है पेशाब कर रहे हैं, वहाँ पे पेशाब कर रहे हैं, वहाँ पे पेशाब कर रहे हैं। ये फात भी हुआ और अल्लाह फरमाता है कि हर चीज को देखो तो इबरत की निगाह से देखो, कैसे कैसे बंगले बनाने वाले, कैसे कैसे कोटियां, कैसे कैसे नामवर गुजर गए हैं, बस आए और चले गए। जिसने दुनिया में रहकर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की, अल्लाह को मनाया, बस उनकी आखिरत से बाकी रही कि जिन्होंने अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करके दुनिया से गुजर गए, अल्लाह ने उनके क़ुबूर को भी आबाद फरमा दिया कि उनकी जिंदगी भी ताबंदा रही, और उनकी गुजरने के बाद भी उनकी जिंदगी को किताबों की शक्ल में किसी ने किताबों में खिदमत की, किताबें उनकी बाकी है, मदारिस का क़याम किया, मसाजिद का बनाए, दीनी काम करके गुजरे। अल्लाह उनकी खबरों को भी नूर बना दिया और मरजाए खलाइक उनके क़ुबूर को बना दिया। अल्लाह क़यामत के बारे में फरमाते हैं कि इसके बदले किसी के बदले में कोई किसी को नहीं दिया जाएगा, फिदिया कबूल ले लिया जाएगा। फिदिया समझ रहे हैं आप कि हाँ यहाँ पे कुछ है, लुबत मुट्ठी दे दिया, इसको दे के छोड़ गए, वो कत्ल करके आ रहे उसको मार दिया, कत्ल हो रहा है, और अल्लाह इल्म करे 3 महीने के अंदर वो मर्डर करने वाला बाहर आ रहा है, क्या बिल पे वो केसी कमजोर पड़ गया, उन्हें वो हो गया, पैसे खिला दिए, खत्म हो गया केस। ये वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हाकिम पे अहकमुल हाकिमीन का की अदालत होगी, वहाँ पे कोई जो है पैसे वैसे कबूल नहीं किए जाएंगे, कोई आगे नहीं कह सकेगा। अल्लाह आगे भी फरमाता वला तनफउहा शफा,
मुला ये मेरे बेटे हैं, आप जरा छोड़ दीजिएगा, वो सोले जो है हमारे सेठ साहब का बेटा है, जरा छोड़ दीजिए, वो एमएलए साहब का बेटा है, वो उनका है, ये फुला है, कोई सिफारिश नहीं, वला शफाअत की कोई शफाअत वहाँ पे कबूल नहीं हुई। ये शफाअत यानी काफिरों के हक में है, कोई ये ना समझे कि हुजूर की शफाअत नहीं है, हुजूर तो शाफी महशर है, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर को शफी बनाया है, अल्लाह के रसूल जरूर शफाअत फरमाएंगे, मुसलमानों को फरमाएंगे, लेकिन जो काफिर हैं उनकी कभी शफाअत कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वला तनफउ शफाअतु इल्ला मन अज़िन ला, ये शफाअत कबूल नहीं की जाएगी मगर जिसको अल्लाह इजाजत दे दे। तो अल्लाह हुजूर को इजाजत देगा, औलिया अंबिया को इजाजत देगा कि वो शफाअत कर सकेंगे, वरना गुनाहगार है या गुनाहगार मतलब काफिर लोग हैं, इनकी जो है शफाअत कबूल नहीं की जाएगी। वला हुम युनसरून, और ना इनकी कोई भी मदद नहीं की जाए, कोई भी मददगार नहीं होगा, वला ना हामी होगा, न मददगार होगा, न नासिर होगा, कोई नहीं, बस ये परेशानी में हो और से फिरता होगा। अल्लाह हमारे हिफ्ज़ व अमान में रखे। और दूसरी आयत सुन ले, वइज़ इब्तला इब्राहीम, और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया। इब्राहीम कौन थे? इब्राहीम जो है ये अबुल अंबिया है, और ये इब्राहीम जो है ये सुरियानी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसको जो है अबराम भी कहा जाता है और अबराहम भी इनको कहा जाता है। इब्राहिम इब्न तारिख इनका जो है नाम है, इनके वालिद का नाम है, और बाद में आज़र, क्योंकि आज़र जो है बाज़ उलमा ने फरमाया और अक्सर ने फरमाया कि आज़र ये इनके चचा का नाम था। इनके वालिद के इंतकाल के बाद इनके चचा ने इनकी तरबियत की थी, तो अरब में चचा को भी बाप का दर्जा दिया जाता है कि अल-अम वालिदुन कहा गया है, हदीस में भी आता है कि चचा का मर्तबा ये बाप के बराबर है। तो इनका जो नसब मिलता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम है, इनसे इनका ताल्लुक है। ये जो है 2160 कब्ल मसीह पैदा हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि अब ये तारीख जो खलम गिनी जा गई है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, जो गिनती 2022 जो चल रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इससे पहले की अगर कोई तारीख बताना हो तो उसको कब्ल मसीह से बता दें। कब्ल मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने, कब्ल मसीह को अगर तारीख की किताबों में भी लिखा जाए तो वहाँ पे काफ और मीम लिखा जाता है। अगर आप उर्दू से पढ़ते हैं और उर्दू किताबों में अगर आपको तारीख अगर पढ़ने में दिलचस्पी है, कहीं पे तारीख अगर लिखी गई है तो अगर ये तारीख अगर हम लिखते हैं 2022 तो वहाँ पे ऐन लिखा जाता है, उसको ईसवी कहा जाता है। अगर अरबी है तो वहाँ पे हा लिखा जाता है, उसको हिजरी मुराद है। और कहीं पर अगर तारीख लिखी हो और काफ और मीम लिखा हुआ हो, ये बड़ी इल्मी बात है। अगर आपको की किताबें, तारीख की किताबें ही पढ़ रहे हैं, हम तारीखों से वाकिफ है, लेकिन इस्लामी तारीखात से और अबिया की तारीखों से वाकिफ है, तो वहाँ पे काफ और मीम अगर लिखा गया है तो उससे मुराद होता है कब्ल मसीह। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 2160 साल पहले पैदा हुए। इनकी जो है नस्ल भी बेशुमार अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इस्माइल है, हज़रत इसहाक है, याकूब है, यूसुफ है, और उसके बाद मूसा भी है, और इसके अलावा ज़करिया है, याहिया है, ये सब बेशुमार अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में पैदा हुए। 175 साल इन्होंने जिंदगी पाई। 175 लंबी लंबी जिंदगी हुआ करती थी, बड़ी बड़ी जिंदगी पाया करते थे। और इससे पहले तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो लोग हज़ारों साल जिंदगी गुजारते थे, और उसके बाद जो है जिंदगी खत्म हो गई। हुजूर ने फरमाया आमार उम्मती बैन 60 व 70, और कमा क़ाल हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के दरमियान में। मेरे उस्ताद मतलब फरमाते हैं 60 साल अगर कोई जी गया नॉर्मल, उसके बाद जो जिंदगी उसको मिल रही है बस इजाफी जिंदगी है। ये जिंदगी तो और ज्यादा इबादत है, 60 के बाद ये एक्स्ट्रा अल्लाह ने अता फरमाया, वरना 60 और 70 साल उसके बाद खत्म। तो उससे पहले वो बड़ी बड़ी उम्रें थी, 175 साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है जिंदा रहे। और इनके बारे में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूद हैं या फिर नसरानी ईसाई हैं या फिर जो है मुशरिकीन। मुसलमान तो मुसलमान, ये तमाम जो है हज़रत इब्राहीम को अपना कहते थे, इब्राहीम हमारे हैं। हज़रत इब्राहीम के बारे में यहूदियों ने कहा कि इब्राहीम हमारे हैं, ईसाइयों ने कहा कि इब्राहीम हमारे हैं, मुशरिकीन भी कहते थे कि हम जो है इस्माइल की औलाद से हैं और इब्राहीम के बेटे इस्माइल हैं, हम भी जो हज़रत इब्राहीम से ताल्लुक हमारा है। तो अल्लाह तबारक क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वलिसान सिद्क़िन अलल आलमीन, कि हर एक की ज़बान पर अल्लाह ने इब्राहीम की तौसीफ को जारी फरमा दिया। ये ऐसे नबी है कि एक की
सना और तौसीफ को हर उम्मतों पे जारी फरमा दिया, यहूद हो नसरानी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनकी जिंदगी को सामने रखो और तुम्हारा मामला देखो। इब्राहिम ने कभी शिरक नहीं किया, तुम शिरक में मुब्तला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, तुम अल्लाह की वहदानियत को छोड़ रहे हो। तो अल-बस इनको समझाया हर तरीके से। जहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा वहाँ पर हम तफसील से आपके सामने जिक्र करेंगे। अल-बस खुलासे गुफ्तगू याद रखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अबुल अंबिया हैं और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि हुज्जतुल अंबिया भी कहा जाता है। और हज़रत इब्राहिम के बेटे हज़रत इसहाक की औलाद में दीगर अंबिया है, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहिम के बेटे हैं, इनकी नस्ल से सिर्फ एक ही नबी आए हैं जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया। और बताते हैं कि हज़रत इब्राहिम की उम्मत में जो चीजें जो है राइज थी और वाजिब थी, वही सुन्नतों को हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर को बाकी रखा। जैसे कि सफा मरवा के दरमियान सई करना है, तवाफ काबा है और ज़बाह करना है। इसके अलावा आएगा कलिमात में भी हम से जिक्र करेंगे कि वो तमाम चीजों को अल्लाह के रसूल ने सुन्नत करार दिया और कई चीजों को अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब करार दिया। तो फरमाया कि वही तला इब्राहिम रब्बुहु, और याद रखो कि जब इब्राहिम को उनके रब ने आजमाया। यहाँ पर एक निशान बना हुआ है कुरान मजीद में। तफसीर का मतलब ये है कि खाली बातें जिक्र कर दिए जाए। मैं कोशिश करता हूँ कहीं पे तजवीद की कुछ बातें वो भी आपके सामने जिक्र करूँ, कहीं पे एहतियात अगर आया है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कुरान मजीद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एहतियात लिखा गया है। तो हमेशा मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ के अपने आप को माहिर अगर कोई समझता है तो ये इसकी बेवकूफ़ी है। जब तक कि अरबी जबान ना आए वो ये कहे कि मैंने तर्जुमे से कुरान को पढ़ा, ये नहीं कहे कि मैं तर्जुमा कर सकता हूँ, मैं तफसीर कर सकता हूँ। नहीं, ये जो है इसको अरबी आना जरूरी है। एक लफ्ज, एक जबर जेर पेश अगर यहाँ का वहां हो गया तो पूरे माने बदल जाते, माने में कहीं पे कुफ्र या कलिमात हो जाते। इसलिए यहाँ पर भी होगा, हो सकता है कि सूरह फातिहा में भी एहतियात का लफ्ज होगा। हाँ, यहाँ पर भी देखिए अगर कहीं पर जो है यहाँ पे इब्राहीम पढ़ती है और रब्बहू कर दिया, पढ़ने के दौरान अगर किसी ने कर दिया वही तला इब्राहीम रब्बहू कर दे, यानी रब पर पेश है यहाँ पर और इब्राहिम पे जबर है। अगर किसी ने पढ़ने में दौरान के क्या कर लिया वही तला इब्राहीम रब्बहू करेगा तो ये पूरे माने इसके बदल जाएंगे, माने भी बदल जाएंगे और कुफ्र हो जाएगा। अगर जानबूझ के कर रहा है तो काफिर हो जाएगा। एहतियात लाजिम है, इसलिए यहाँ पर कुरान में नई तबाअत जो कुरान की आ रही है वहां पे आपको निशान लगा के बता दिया गया कि एहतियात करें। तो तर्जुमा इसका क्या होगा, जब इस इब्राहिम को उनके रब ने आजमाया, ये सही तर्जुमा है। अगर उल्टा करके कर देंगे तो क्या होगा, याद करो जब इब्राहिम ने उनके रब को आजमाया, नाउज़ुबिल्लाह। तो सिर्फ फर्क क्या है, अल्फाज वही है, बिल्कुल ना अली बदला है, ना जाल बदला है, ना बा बदला है, ना ता बदला है, ना नाम बदला है, ना या बदला है। इब्राहिम के वही लफ्ज है, इब्राहिम के भी वही लफ्ज है, सब वही है, लेकिन सिर्फ एक फर्क रब्बुहु और रब्बहु का है। रब्बुहु की जगह रब्बहु, तो ये होता है फेल फाइल मफूल। इसमें रब्बुहु फाइल है, इब्राहिम मफूल होगा। अगर गलत पढ़ देंगे तो इब्राहिम फाइल होगा और रब्बुहु उसका मफूल होगा। तो इसका याद करें। और अल्लाह फरमाता है कि याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने आजमाया। आजमाया क्यों जाता है, आजमाया बहुत सारी चीजों के लिए होता है। दो चीजें खुलासे के तौर पे याद रख लें कि एक इसलिए आजमाया जाता है कि अल्लाह अगर किसी को नेमतें दे रहा है और नेमतें देने के बाद लोग ये कहेंगे कि भाई अल्लाह ने ये नेमतें क्यों दे दी, तो अल्लाह उनको आजमाइश में मुब्तला करता है कि देखो मैंने ये नेमतें ऐसे ही नहीं की है, बल्कि इन्होंने बहुत सारी आजमाइशों में मुब्तला हुए और आजमाइशी हुई, इसके बाद भी ये खरे उतरे जब अल्लाह ने इनको खलीलुल्लाह बनाया। तो इसलिए होता है। और दूसरा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इनमें जो बर्दाश्त और इम्तिहान में गुजरने की ताकत है लोगों पर आशकारा और वाज़ेह हो जाए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आजमाया है। और जो है अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानता भी था, अल्लाह ने खुद आपको रसूल बनाया, सब कुछ जानता था, लेकिन इजहार करने के लिए इनको आजमाया और लोगों को बताने के लिए कि देखो इब्राहिम पर जो सर पे ताज रखा खिल्लत का,
خلیل اللہ بنایا یعنی اللہ کا دوست بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ان کو بے شمار آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ میں نے کئی گفتگو میں اور کئی نشستوں میں آپ سے ذکر کیا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری محبت کے انداز الگ ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے انداز اور اس کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی ہیں۔ ہم اگر کسی کو چاہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا محبوب مصیبتوں سے محفوظ رہے، یعنی اگر ہم باپ ہے دعا یہ کرتے ہیں اپنے سے پہلے کہ اللہ میری اولاد خوش و خرم رہے۔ اب یہ سب کچھ بنا کے پیسے جمع کر کے انسان کچھ جا رہا ہے، یہ تو چلا جا رہا ہے، دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد خوش و خرم رہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ میرا محبوب خوش و خرم رہے، کہ میں جس کو چاہتا ہوں وہ اچھا رہے، اس میں کوئی مصیبت نہ آئے، بیماریاں نہ آئے۔ بہت لوگ بھی کہتے ہیں اللہ اگر اولاد بیمار، اللہ یہ بیماری مجھ کو دے دینا تھا لیکن میری اولاد کو نہیں دینا، یہ مصیبت میرے کو دے دینا تھا لیکن میری اولاد کو نہیں دینا۔ باپ بیٹا بھی چاہتا ہے کہ اللہ میرے باپ کو نہیں دے دینا تھا، میں آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ تو ہماری محبت کے انداز یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا محبوب کبھی مصیبت نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، فلاں نہ آئے، یہ ہماری محبت کا انداز ہے۔ لیکن اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو بڑی سخت مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، بڑی سخت مصیبتوں میں۔ کہیں پہ ایک نبی ہے کہ کسی کو آنے سے کاٹا جا رہا ہے، کسی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے ماں سے جدا کیا جا رہا ہے، کسی کو بیماریوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، کوئی ہے کہ کنویں میں جس کو ڈالا جا رہا ہے، بازار مصر میں جس کو بیچا جا رہا ہے، کسی کو فلاں کیا ہے۔ بس آزمائشیں ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اتنا زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی سی مصیبت آ گئی، واویلا مچا دی، اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ محبوبوں کا طریقہ نہیں ہے۔ صبر اور استقامت سے رہیں اور یہ کہے کہ مولا تیری جو رضا ہے ہم اس رضا پہ ہم کو استقامت عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کیا بڑی بڑی آزمائشیں جی۔ اللہ اکبر، وقت نہیں ہے کہ میں مختصر آپ سے بڑی بڑی آزمائشوں کو ذکر کر دوں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا۔ کہیں پہ ہے کہ بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، آپ جو ہے پریشان رہے ہیں کہ یہ کیا بتوں کی پرستش ہے، یہ کیسے غیر اللہ کے سامنے یہ سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں، یہ اس طریقے سے ان کو آزمائے۔ آپ جہاں جس گھر میں پرورش پا رہے ہیں وہ صنم خانہ بنا ہوا ہے، بت خانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے سامنے چھپے ہوئے۔ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اللہ اکبر، اللہ کے کرم سے ہم ایک کام میں آسان کام میں اقامت دی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، غیر کے گھر میں پیدا ہو کر اسلام کا داعی بنے اور اسلام والا بنے، یہ بڑی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ سامنے دیکھ رہے کہ ان کے رشتہ دار مشرک ہیں، ان کے چچا مشرک ہیں۔ ایسے وقت میں بڑی آزمائش کے ابراہیم اس میں کھڑے اترتے ہیں۔ کہیں پہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم اس میں کھڑے اترتے ہیں۔ 100 سالہ زندگی ہو چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ان ابراہیم، اللہ نے خود تعریف کی، بڑا ابراہیم نے جی، ان ابراہیم لأواه حلیم، بڑی آہ و بکا کرتا ہے ابراہیم، بڑا رونے والا ابراہیم ہے، حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے، بڑے رو رہے ہیں۔ دامن یوں سمجھے کہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل نہیں چھوڑا والا۔ 100 سالہ زندگی تو ہو چکی ہے لیکن تیرے در سے خالی تو نہیں لوٹاتا ہے۔ 100 سال کے بعد بھی اللہ نے یہ معجزہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، نہیں چھوڑا۔ آزمائش ہوتی ہے، اولاد نہیں ہونا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیا۔ اب بچہ پیدا ہوا، کسی نے کہا کہ 12-13 سال، کسی نے کہا کہ ابھی شیر خانی کے عالم میں ابراہیم کو حکم دے گا ابراہیم ریگستان میں بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کے آ رہا ہے۔ ابھی بچے کے ساتھ کھیلے بھی، ابھی جو ہے کودے بھی نہیں، بچہ بھی اس کو ابھی کھیلتا کودتا بھی نہیں، دیکھ ابراہیم کو کہا کہ نہیں آج ان کو ریگستان میں چھوڑ کے آ جانا۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ نے بے شمار جو ہے کلمات کے ذریعے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام اس میں کھڑے اترتے ہیں۔ حضرت ابن عباس، اس کے علاوہ بھی مختلف روایات ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کلمات کیا تھے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ وہ حضرت ابراہیم کے صفات تھے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر
वलहाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरहुम। सूरह तौबा क्या है? ये तमाम सिफात हज़रत इब्राहीम में मौजूद थे। इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह ने आज़माया। आप आबिद भी थे, ज़ाहिद भी थे, रोज़ेदार भी थे, नेकी का हुक्म देने वाले, अमर बिल मारूफ करने वाले भी थे, नही अनिल मुनकर करने वाले भी थे, अपनी हिफाजत करने वाले थे। तमाम सिफात भी थे। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया 30 निशानियां होती, 10 आयतें, 10 सिफात अल्लाह ने सूरह बरात में, सूरह तौबा में जिक्र की। 10 जो है सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया। ये तमाम चीजें हज़रत इब्राहीम में इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस सादिक़ीन वस सादिक़ात वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वल ज़ाकिरीन। मुसलमान भी थे, मोमिन भी थे, अल्लाह से डरने वाले भी थे। ये तमाम चीजों का हुक्म दिया गया। इब्राहीम इस पे खड़े उतरे। अल्लाह ने सूरह मोमिनून में फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम जो सिफात अल्लाह ने सूरह मोमिनून में जिक्र की, इन तमाम चीजों के जरिए आजमाया। क्या क्या थे? क़द अफ़लहल अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो नमाज में खुशू खुजू करते हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, लहू लाभ चीजों से बचे हुए रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये 30 चीजें हज़रत इब्न अब्बास ने जिक्र किया। अल्लाह ने इन चीजों के जरिए आजमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें खड़े उतरे और एक फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हुक्म दिया गया। और ये चीजें थी, वो क्या थी? वो हज के जो अरकान है, ये अरकान देकर उनको आजमाया। इब्राहीम इसको करके बताया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको अदा किया, इसके जरिए आजमाया। ये भी एक कौल है। और बात ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें थी उसके जरिए आजमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें क्या थी? कि सर में जो है तेल लगाना, और जो है दाढ़ी बढ़वाना, और जो है मूंछ को कम करना, खसूस शवारी, और जो है नाखून काटना, और ज़ेरे नाफ बालों को काटना, और बगल के नीचे के बाल को बनाना। इन चीजों के का हुक्म दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको किया। फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम, अब इसकी तफसील भी उलमा ने जिक्र की है कि मिसवाक करना भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, कि वहाँ से मिसवाक रहा। कुल्ली करना भी उलमा ने जिक्र किया कि ये का हुक्म दिया इब्राहीम इसको किए हैं। नाक पे पानी चढ़ाना भी जिक्र किया। और मशहूर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है वो है कि दाढ़ी बढ़ाएं और जो है मूंछ को कम करें। इसके अलावा और एक जो उलमा ने जिक्र किया वो है क़त्ल ना करना, कि ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और उलमा ने जिक्र किया, क्योंकि ये मौजू हमेशा आगे नहीं आएगा, इसलिए इस पे रोशनी डाल देता हूँ कि ये हज़रत इमाम मालिक हैं और इमाम शाफ़ई हैं। ये फरमाते हैं कि ये खतना करना ये जो है वाजिब है। लेकिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। और फरमाया कि ये फितरत में से है, इंसान की फितरत में से है कि इसको करे। और उलमा ने फरमाया कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो इसके 7वें दिन अकीका करें, और 7वें दिन ही खतना कर दे, ये बेहतर है। और लेकिन उसके लिए इजाजत भी है कि अगर कोई नहीं करना चाहता तो कम से कम जो है वो बुलूग से पहले पहले, और जो है शऊर से पहले पहले, कि जिसमें सतर का दिखाना मन्नत है, तो उसकी उम्र आने से पहले पहले खतना कर दिया जाए। अब उसमें इख्तिलाफ है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है, बालिग उम्र में अगर कोई ईमान लाता है, इस्लाम कबूल करता है, तो अब ये खतना बनाए करेगा या नहीं करेगा? तो अक्सर उलमा फरमाते हैं कि अब इसको खतना की जरूरत नहीं है, क्योंकि खतना एक सुन्नत है। और शर्मगाह को बताना और शर्मगाह को खोल देना बगैर किसी वजह के, ये तो गुनाह का मामला है। तो फरमाया कि और इसके लिए बेहतर ये बताया गया कि वो ऐसी औरत से निकाह करे। ये उलमा ने जिक्र किया तफसीर काज़ी वगैरह और दूसरे उर्दू तफासिर में, कि जो कि खतना से वाकिफ है, तो अगर वो वैसी औरत से करेगा तो वो शादी करने के बाद वो औरत के लिए उसको कोई पर्दा नहीं, तो वो उसका खतना करे। वगैरह ना उसको खतना बड़े होने के बाद जो है अगर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है तो उसको खतना की जरूरत नहीं है। और उलमा ने ये भी जिक्र किया कि बाज़ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में 13 के 13 अंबिया ऐसे आए हैं जो कि मखतून पैदा हुए, जो खतनाशुदा पैदा हुए। अब आजकल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, हुजूर ने भी इसको फितरत फरमाया है कि अब आजकल यहूद भी इससे कायल हो रहे हैं और ईसाई भी इससे कायल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ये तो करते होंगे। इसके अलावा मुशरिकीन भी मानने पे मजबूर हो चुके हैं कि हाँ, ये जो इस्लाम ने ये जो हुक्म दिया है ये बिल्कुल सही है।
नजाफत, इससे मालूम होती है कि इंसान जब वो पेशाब करता है तो उसके खतरात उसी गोश और में रह जाते हैं, नजाफत सही नहीं होती है। इंसान जब जो है फुर्बत हासिल करता है, मुजामात करता है, उसके बाद जो गंदगी होती है उसी में रहती है, इसकी वजह से कई बीमारियों में ये मुब्तला होने का इम्कान होता है। वो चीज़ और वो चमड़ा अगर निकाल दिया जाता है तो इंसान के लिए पानी का भी ज़मीन होता है और बीमारियों से भी ये महफूज होता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई अल्लाह ने किसी में भी जो सलाहियत दी, अगर कोई जो है कार्डियोलॉजिस्ट है, दिमाग का कोई डॉक्टर है या दिल का जो डॉक्टर है, तो उसको चाहिए कि कुरान पढ़े और इसके बाद जो है इस्लाम की हक़ानियत को और जो है अपने इल्म को टैली करके लोगों को बताएं कि ये चीज हमारा इस्लाम भी हुक्म देता है। यूरोलॉजिस्ट है वो जो है वो उसको इस्लाम की तालीमात को पढ़ेगा तो अपने डॉक्टरी लिहाज से वो जो है इस चीज को लोगों को समझाने में बड़ी आसानी होती है। जो जिस चीज का फील्ड का माहिर है कुरान और हदीस को पढ़े और वो चीज लोगों को समझाने की कोशिश करे, बताएगा। अगर कोई डॉक्टर है कि नहीं ये चीज हमारे इस्लाम में इसका हुक्म दिया गया है और डॉक्टरियत भी ये बताती है, इल्म तिब भी ये बताता है कि ये चीज अगर करेगा तो महफूज रहेगा। इस्लाम दीन फितरत है, वही चीज का हुक्म देता है जो फितरत में है। तो 13 अंबिया ऐसे हैं जो मखदूम पैदा हुए और उनमें हजरत आदम, हजरत शीस है, हजरत इदरीस है, हजरत नूह है, हजरत लूत है, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत शुएब, हजरत सुलेमान, हजरत याहया, हजरत ईसा और हमारे आका नामदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, ये तमाम मखदूम पैदा हुए हैं। तो अलबस यहाँ पे ये जिक्र किया गया अल्लाह ने इब्राहिम को बेशुमार आज़माइशों में मुब्तला किया, फअतम्महुन्ना, इब्राहिम ने उनको मुकम्मल किया। उसके बाद अल्लाह ने एक पैगाम सुनाया, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ए इब्राहिम हमने तमाम लोगों के लिए तुमको इमाम बनाया, मरकज बनाया, तुम्हारी शरीयत को एक मरकज बनाया, उसके अलावा जितनी भी शरीयतें हैं उसको फॉलो करने का हुक्म दिया गया, ये इमाम बनाया। तो अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जो है नबी भी है और साथ में आप बशीर तकाज़े भी रखते थे, तो दुआ कर दी जब अल्लाह अता करना चाहता है, अल्लाह मेरी औलाद में से भी तू अंबिया को अता फरमा दे, अल्लाह तू अंबिया भेज तो मेरी ज़ुर्रियत में से अता फरमा। तो अल्लाह ने इस दुआ को कबूल किया, लेकिन फरमा दिया ला यनालु ज़ालिमीन, लेकिन जो जालिम है, जो मुशरिक है, उनको नबी नहीं बनाऊंगा, बल्कि जो सालेह होंगे उनको नबूवत अता करूंगा। तो ये रहा खुलासे गुफ्तगू ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा। इब्राहिम ये भी आयत देखा था लेकिन वक्त काफी हो चुका है, इंशाअल्लाह ज़्यादा अपने वक्त नहीं लेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात आएंगे। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खाने काबा की तामीर का वाक़या है कि आपके जो मकाम इब्राहिम हम देखते हैं इसकी हकीकत क्या है, इसको क्यों मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया गया है, फिर मसाजिद के ज़िम्मेदारों का क्या काम है। मेरे अक्सर मसाजिद में जो है बसावत जो है खड़ा खड़ा कहता हूँ तो इस वजह से लोग ज़िम्मेदार जो है नाराज हो जाते हैं। यहाँ पर हज़रत इब्राहिम को और हज़रत इस्माइल को जो वहाँ मस्जिद के मुतवल्ली और खिदमत गुजार थे उनको क्या हुक्म दिया गया वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा दर्स में। उसके बाद हज़रत इब्राहिम ने क्या दुआ मांगी थी, उसके क्या नताइज उस वक्त में हुए, उस दुआ के समारात क्या रहे और क़यामत तक के लिए हज़रत इब्राहिम ने खाने काबा के लिए क्या दुआ मांगी, इंशाअल्लाह वो आयत दर्स में आपसे जिक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस दर्स तफसीर को कबूल करे। वक्त भी हो गया, किताब भी मिला है, इंशाअल्लाह दर्स फिक़्ह आइंदा आपसे जिक्र करेंगे। या